हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ रहे थे सिलेंट्रेटा। आज अपन पढ़ेंगे टिनोफोरा। तो देखो, इससे पहले अपन ने पढ़ा पोरीफेरा, जिनकी 3 क्लासेस कैलकेरिया, हेक्साक्टिनिडा और डिमोस्पंजिया। फिर अपन ने पढ़ा सिलेंट्रेटा, क्लासेस हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ। आज अपन पढ़ेंगे अभी टिनोफोरा। टिनोफोरा, they are also called comb jellies और सी वॉलनट। इन्हें समुद्री अखरोट या कंगक जेली भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनाइडेरियंस बिकॉज नाइडोब्लास्ट आर एब्सेंट। स्टिंगिंग सेल्स नाइडोब्लास्ट नहीं पाए जाते, इसलिए को एनाइडेरियंस बोलते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। सारे के सारे जीव मेरीन वाटर में है। Body is soft and transparent. Body is soft and transparent. Body shape may be spherical, oval or flat. Important. Exclusively they are marine. Body is soft and transparent. Body shape may be spherical or oval or flat. They are diploblastic and tissue level of body organization. Has like coelentrates. Next, they have tissue level of organization. They have 8 ciliated comb plates on their body, which are helps in locomotion. जैसे इनकी बॉडी है, बॉडी पर इस तरह से 8 comb plates, ciliated comb plates, which are helps in locomotion. It is important feature. Next, tentacles may be present or present. If the tentacles are present, they are 2 in number and solid. अगर टेंटिकल्स होंगे तो कितने होंगे? 2 होंगे और वो सॉलिड स्ट्रक्चर के हो जाएंगे। The tentacle also have adhesive cells कोलोब्लास्ट। टेंटिकल्स में एडसिव चिपकाने वाले सेल्स कौन से होंगे? कोलोब्लास्ट, जिनको अपन लेसो सेल्स भी बोल सकते हैं।
तो एक बार दोबारा देखिए, एनाइडेरियंस नाइडोब्लास्ट आर एब्सेंट, दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, सारे के सारे मैरीन वाटर में हैं. बॉडी इज सॉफ्ट एंड ट्रांसपेरेंट, बॉडी शेप में बी स्फेरिकल और ओवल और फ्लैट, दे आर डिप्लोब्लास्टिक एंड टिश्यू लेवल ऑफ body organization. They have 8 ciliated comb plates on their body which are helps in locomotion. Tentacles may be absent or present. If tentacles are present, they are 2 in number and they are solid, or also have adhesive cells called coloblasts. Next, they have sensory structure. Sensory structure. Stetocyst on aboral surface. Aboral surface means opposite to mouth. इनमें सेंसरी स्ट्रक्चर स्टेटोसिस्ट, जो माउथ के अपोजिट सरफेस पर, जिसको अपन बोलते हैं एबोरल सरफेस के ऊपर. डाइजेशन बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर. Digestion both intracellular and extracellular. Next, the digestive system के बाद respiratory system, skeleton is absent. Respiration and excretion take place through body surface by simple diffusion. Nervous system or nervous cells are diffuse type, and only sexual reproduction is present by external fertilization. External fertilization and indirect development. Sexual reproduction is completely absent. Fertilization, external development, indirect. It means larva. Centipede larva is formed. इनमें कौन सा लार्वा बनता है? सीडिपिड लार्वा. एक स्पेसिफिक कैरेक्टर इनका, दे इमिट्स लाइट. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, या ये कह सकते हैं, दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस. दे इमिट्स लाइट ड्यूरिंग डार्कनेस. तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, only sexual reproduction is present, asexual reproduction is absent. दूसरा, they have property of bioluminescence. Third, they are exclusively marine. फ्रेश वाटर में कोई स्पीसीज नहीं है इनकी, कोई जीव नहीं है इनमें. और एक इंपॉर्टेंट बात है, the tentacles may be present or absent. If the tentacles are present, they are 2 in number and they are solid in structure with adhesive cells, coloblasts. The members of Ctenophora can be divided into 2 classes. These classes are Tentaculata and Nuda. Class Tentaculata and Nuda. Example, Neurobranchia, Ctenoplana and Biroi.
एग्जाम्पल्स हैं प्लूरोब्रैंकिया, टिनोप्लाना एंड ब्रोड। तो ये था फाइलम टिनोफोरा। नेक्स्ट देखते हैं अपन फाइलम Platyhelminthes. They are also called flatworms. Mostly they are parasite and generally they are but some are free living such as Dugacia. They live both in water and both in land. Next, they are diploblastic, organ level of body organization, organ level of body organization. Body is bilaterally symmetrical. The body wall have three type of muscles: longitudinal muscles, next circular muscles and oblique muscles, and these muscles are mesodermal in origin. तो देखिए mostly they are parasite, commonly called flatworms, but few are maybe free living, which are live both in water and on land. Triploblastic, sorry for this, diploblastic नहीं है, triploblastic है. Triploblastic, organ level of body organization. They are bilaterally symmetrical, but have three type of muscles: longitudinal muscles, circular muscles and oblique muscles. They are mesodermal in origin. Mesodermal layer is develops so that they are triploblastic. Next, locomotory organs are absent, but hooks and suckers are present. Locomotory organs are absent, but hooks and suckers are present. Next, the endoparasites have thick layer of cuticle. The endoparasites have thick layer of cuticle on epidermis, which prevent the parasite from digestive juice of host. यानी जो पैरासाइट हैं उन पे क्यूटिकल की लेयर है जो इनको डाइजेस्टिव जूस से बचाती है. नेक्स्ट, they are acoelomate. It means coelom is absent. A mesenchymal or parenchymal tissue is filled between alimentary canal and body wall. Acoelomate.
digestive system is incomplete because alimentary canal opens out through single opening mouth. It means they have blind sac body plan. Blind sac body plan means alimentary canal or body cavity opens out through single opening. So the alimentary canal is incomplete or alimentary canal is opens out through single opening mouth. But in some animals like Taenia, alimentary canal is absent. Next, respiration through body wall और इफ अगर पैरासाइट है जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है उस कंडीशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी इनके अंदर होगा. फॉर एक्सक्रेशन specific cells flame cells are present and the flame cells are also responsible for osmoregulation. तो यहां पर देखिए एलिमेंट्री कैनाल केवल सिंगल ओपनिंग से ओपन हो रही है, लेकिन कुछ जीव जैसे टीनिया में एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट भी हैं. रेस्पिरेशन या तो बॉडी वॉल से या फिर एंडोपैरासाइट है तो एनारोबिक भी है. एक्सक्रेशन के लिए स्पेसिफिक सेल्स जिनको अपन बोलते हैं फ्लेम सेल्स, और फ्लेम सेल्स है वो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हैं. तो यहाँ देखते हैं अपन ऑस्मो रेगुलेशन के बाद किस प्रकार से फ्लेम सेल्स हैं. ये फ्लेम सेल्स जिनमें ये हैं स्यूडोपोडिया, cilia and nucleus and excretory droplets. तो यहां पर ये देखिए सीलिया एक फ्लेम की तरह से अपीयर हो रही है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं अपन फ्लेम सेल्स. स्पेसिफिक फीचर the excretory structure in flatworms or the excretory structure in the members of platyhelminth is flame cells, and the flame cells are also responsible for osmoregulation. Next, nervous system is ladder like, सीढ़ी के समान, have cerebral ganglion and 3 pair of longitudinal nerve cords, and the longitudinal nerve cords are connected to each other by transverse commissures. जैसे longitudinal nerve cord, transverse commissures and cerebral ganglion which acts as a brain. It means they have comparatively complicated nervous system which is ladder like
consist with ganglion and nerve cords. They are bisexual except सिस्टोसोमा. सिस्टोसोमा के अलावा सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे बाइसेक्सुअल. इंटरनल फर्टिलाइजेशन and indirect development. Indirect development. Various larval forms are present. Some members are also reproduced by asexually and they have power of regeneration. Some members have great power of regeneration such as Dugacia. The members of Platyhelminthes can be divided in 3 classes on the basis of their habitat. क्लास फर्स्ट है ट्रबेलेरिया, फ्री लिविंग. एग्जाम्पल है डुगेसिया, प्लेनेरिया. हैव ग्रेट पावर of regeneration. They live in fresh water. Nocturnal, रात्रि के समय बाहर निकलते हैं. एंड कैनिबलिज्म, यानी अपने जाति के जीव को फूड के रूप में लेते हैं. डुगेसिया, ट्रबेलेरिया. दूसरे हैं ट्रिमेटोडा, बोथ एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट. एग्जाम्पल है फैसियोला, लिवर फ्लूक. लिवर फ्लूक के बारे में अपन देखते हैं, फैसियोला और लिवर फ्लूक. पहली क्लास थी ट्रबेलेरिया, दूसरी ट्रिमेटोडा जिसका एग्जांपल देखा अपन ने लिवर फ्लूक. लिवर फ्लूक कॉज liver rot disease. It live in bile duct of sheep or goat. Next, it is a digenetic parasite. It means it complete its life into 2 hosts. The primary host, sheep or goat, and the secondary host, garden snail. Different type of larva. Miracidium, Sporocyst, Radia, Cercaria and
मेटासर्केरिया। डिफरेंट एक लार्वा है, मिरासिडियम लार्वा है, फिर स्पोरोसिस्ट लार्वा है, और एक स्पोरोसिस्ट से बहुत सारे रेडिया बनते हैं। इट मीन्स पॉली एम्ब्रियोनी इज प्रेजेंट, एक एम्ब्रियो से बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं। मिरासिडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। ह्यूमन के लिए इन्फोसिस है, शिप के लिए इन्फोसिस है मेटासर्केरिया, और गार्डन स्नेल के लिए मिरासिडियम। ध्यान रखें, मिरासिडियम लार्वा इज इन्फेसिस फॉर गार्डन स्नेल एंड मेटासर्केरिया इज इन्फेसिस फॉर शिप एंड गोट। तो पहली क्लास थी ट्रेबेलेरिया, जिसका एग्जाम्पल देखा आपने, डुगेसिया जिसको कहा प्लेनेरिया। सेकंड क्लास है ट्रिमेटोडा, जिसका एग्जाम्पल देखा अपन ने लीवर फ्लूक, या इसी को बोलते हैं फेसियोला, और इसी का एग्जाम्पल है सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा इज यूनिसेक्सुअल एंड ऑल्सो कॉल्ड ब्लड फ्लूक। इट मीन्स ट्रिमेटोडा के सारे जीव हैं, उनको अपन फ्लूक भी बोल सकते हैं, फ्लूक। थर्ड जो क्लास है वो है सेस्टोडा, टेनिया, एलिमेंट्री कैनाल, एब्सेंट। टेनिया इज also digenetic parasite. The primary host human, secondary host pig. देखिए पिग का जो मीट जिसमें टीनिया के लार्वा हैं उसको बोलते हैं मेजेली पॉर्क, इसलिए टीनिया इज ऑल्सो कॉल्ड मेजेली या पॉर्क वॉर्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉर्क वॉर्म, पॉर्क वॉर्म। तो प्राइमरी होस्ट ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट पिग। डिफरेंट लार्वा, हेक्साकैंथ, ओंकोस्फियर, ब्लैडर वॉर्म, एंड सिस्टिसर्कस। इसमें बहुत सारे लार्वा हैं, जैसे हेक्साकैंथ है, ओंकोस्फियर है, ब्लैडरवॉर्म है और सिस्टिसर्कस है। सिस्टिसर्कस इज इन्फेसियस फॉर ह्यूमन एंड हेक्साकैंथ इज इन्फेसियस फॉर पिग। पिग के लिए इन्फेसियस हेक्साकैंथ, ह्यूमन के लिए सिस्टिसर्कस। तो इसमें भी डिफरेंट लार्वा हैं और ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है, जिसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट पिग। टीनिया के बारे में अपन थोड़ा सा और देखते हैं। टीनिया की बॉडी के 3 पार्ट हैं, स्कोलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला। यहां पर हुक्स की 2 रो होंगी, सकर्स, सकर्स, सकर्स। दिस पार्ट इज कॉल्ड रोस्टेलम, ये हुक्स, नेक, and this part is called scolex, and rest of the part is called strobila, and each segment of strobila
इज कॉल्ड प्रोग्लोटिड। एज सेगमेंट इज कॉल्ड प्रोग्लोटिड। तो देखिए प्रोग्लोटिड्स अबाउट 800 to 1000 प्रोग्लोटिड्स हैं, जिनमें प्रॉक्सिमल पार्ट के कुछ प्रोग्लोटिड्स हैं, उनमें सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। तो इनको कहेंगे अपन इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स। आफ्टर देन पहले क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, उसके बाद में फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। तो यहाँ के कुछ सेगमेंट्स उसमें केवल मेल सेक्स ऑर्गन होंगे, और यहाँ पर करीब 200 सेगमेंट ऐसे होंगे जिनमें बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। दे आर कॉल्ड मैच्योर सेगमेंट्स, इनको कहेंगे मैच्योर सेगमेंट। और उसके बाद के लास्ट के जो सेगमेंट्स हैं उनमें सेक्स ऑर्गन्स आर डिस्ट्रॉयड, ओनली फर्टिलाइज्ड एग्स आर फिल्ड इन ईच सेगमेंट। द लास्ट सेगमेंट्स आर कॉल्ड ग्रेविड्स। तो सबसे पहले इमेच्योर सेगमेंट, उसके बाद मैच्योर सेगमेंट, और मैच्योर सेगमेंट के बाद में ग्रेविड्स। ग्रेविड बनने के बाद में द ग्रेविड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बॉडी ऑफ टीनिया। द प्रोसेस इज कॉल्ड एपोलाइसिस, यानी ग्रेविड का टीनिया की बॉडी से सेपरेट होना का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एपोलाइसिस। और ये जो प्रोग्लोटिड्स है वो सेपरेट होते हैं, ग्रेविड सेपरेट होते हैं, और न्यू प्रोग्लोटिड्स आर फॉर्म्ड बाय नेक। नेक के द्वारा नए सेगमेंट्स बनते रहते हैं। तो देखिए बॉडी के 3 पार्ट हो गए, स्कोलेक्स, नेक और स्टोबिला। स्कोलेक्स पे हुक्स हैं एंड सकर्स हैं, नेक न्यू प्रोग्लोटिड्स बना रही है, स्टोबिला में 800 to 1000 तक जो सेगमेंट्स हैं जिनको बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स, जिनमें इमेच्योर प्रोग्लोटिड, मैच्योर प्रोग्लोटिड और लास्ट के जो एग फिल्ड जो प्रोग्लोटिड्स हैं उनको बोलते हैं ग्रेविड। और ग्रेविड का इनके बॉडी से सेपरेट होने का जो प्रोसेस है वो क्या है, एपोलाइसिस। तो इस तरह से अपन ने देखा ट्रबेलेरिया, जिसका एग्जाम्पल देखा डुगेसिया, जिसको बोलते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरियम हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन एंड लिव इन फ्रेश वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा ट्रिमेटोडा, जिसमें देखा फेसियोला यानी लिवर फ्लूक, और सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा इज यूनिसेक्सुअल, एक्सेप्शन है इसमें, जिसको बोलते हैं ब्लड फ्लूक। एंड फेसियोला लिवर फ्लूक, डाइजेनेटिक पैरासाइट, प्राइमरी होस्ट sheep or goat, secondary host garden snail. It causes a liver rot disease because live in bile duct of sheep. Next, have different type of larva, Miracidium larva, Sporocyst larva, Radial larva, Cercaria larva and Metacercaria larva. Metacercaria is emphasis for sheep and Miracidium is emphasis for garden snail. Next, Trabellaria, Trematoda, Cestoda, alimentary canal absent. They are endoparasite. सारे के सारे क्या हैं, एंडोपैरासाइट हैं। इनमें भी टीनिया डिफरेंट लार्वा, कौन कौन से लार्वा इनमें देखिए, हेक्साकेंथ लार्वा, ओंकोस्फेयर लार्वा, ब्लैडरवॉर्म, ब्लैडरवॉर्म के बारे में सिस्टी सर्कस लार्वा। सिस्टी सर्कस इज इन्फेसिस फॉर ह्यूमन एंड हेक्साकेंथ इज इन्फेसिस फॉर पिग। ह्यूमन प्राइमरी होस्ट, पिग सेकेंडरी होस्ट। और एक इंपॉर्टेंट बात, इनमें ग्रेविड्स का बॉडी से सेपरेट होना, एपोलाइसिस। नेक्स्ट एस्केलमेंथीज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।